हेलो सर, आ गए क्या विकास सर? संगीता, स्क्रीन दिख रहा है? ऑडिबल हूं मैं? एक बार कंफर्म करो। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर, थैंक यू। थोड़ा सा वो टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, दैट आईडी वाज नॉट वर्किंग एग्जैक्टली। तो मैंने फिर फटाफट मैंने सबको शेयर किया। हमने कहा भाई नई आईडी जनरेट करो। एंड तो आज मैं सबका इंट्रोडक्शन कराता हूँ। हमारे सारे पार्टिसिपेंट आई थिंक ज्वाइन कर चुके हैं। एंड अरिंदम, ओके, यस सर। आगे ठीक है। गुरप्रीत, यस सर। सो गुरप्रीत आपका वीडियो ऑन है? यस, ठीक है। सो हाँ सर, जी सर। because sir, these are all my students that are doing masters in some life sciences subject, and mostly, and some BSc students are also here. So Gurpreet is going to give a welcome note, and then we will start. So kindly Gurpreet, I request you to give a brief note about sir Yes. achievements, sir academic achievements, sir biodata, sir working, and Yes, sir is already a patent attorney in and has worked a lot in Punjab government. So go ahead with the good welcome note. Okay, thank you so much. Thank you, sir. Hello, good afternoon, everyone. Today we are here for the webinar on the intellectual property rights. Heartily welcome to all the participants and the faculty members of the Married Life Sciences. Vikas Aswal sir is with us today for this webinar. Welcome, sir. Thank you. As we all know that the IPR is the ideas, inventions and the creative expressions based on which there is a public willingness to bestow the status of the property. As I will give some introduction about the sir. Vikas sir is the alumnus of the Rajiv Gandhi School of the Intellectual Property Law, IIT Kharagpur. He also earned Master of Intellectual Property Laws. He is a qualified patent attorney and registered with the Patent Office, Government of India. He is practicing as the advocate and patent and trademark attorney, regularly dealing with patents including PTC applications, consultancies in foreign filing and including convention applications. Regularly dealing with the consultancies, assignments on IPR at industry as well as the academic level. He has also remained project officer in Intellectual Property Facilitating Center, Chandigarh for 1.5 years. He has consulted 300 patents, 80 industrial designs, 450 trademarks, and 75 copyright applications in the last 10 years. He has also consulted in trademarking enforcement through IPR Enforcement Rules 2007. He has 4 journal publications, 4 conference proceedings, and on various IPR issues and concepts, beside articles in newspaper and newsletters. He has already delivered around 170 specialized lectures and training programs on intellectual property rights and cyber laws in various institutes and industrial associations, including Central Detective Training Schools, Ministry of Home Affairs, Indian Institute of Technology, Roorkee, IIT Rajiv Gandhi National University of Law, Jawaharlal Nehru University, New Delhi, and IIT Jalandhar, and many more. Sir, about the Bhatt sir, it will be a welcome given by the Arindam. Arindam, please. अच्छा, मेरे बारे में भी बता रहे हो? ओके ओके, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। थैंक यू अरिंदम, थैंक यू अरिंदम। Good evening, afternoon, sir. Good afternoon. Sir, it's a very hardly, we are very well, मतलब वो है सर हमको कि आप हिंदी में बोल दो, ऑर्गेनाइज करवा रहे हो सर। एंड डॉक्टर शैलेंद्र, हाँ सर, डॉक्टर शैलेंद्र भट्ट सर हैज, मतलब उन्होंने सर मतलब काफी मतलब हमें सपोर्ट किया है अपने ऑर्गेनाइजेशन में। और जो मेरिट लाइफ साइंस जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उन्होंने मतलब उनके 20 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है और 45 रिसर्च पेपर पब्लिश है। उनके वे ऑफ एक्सप्लेनेशन है काफी ज्यादा
मतलब enchanting है, and we are very proud that we have got such kind of faculty in our institute. Thank you. And it's sir, I think we should all will enjoy for sharing this intellectual property rights topic for this webinar, sir. Yeah. Thank you so much, Arindam. Now I give opportunity to Vikas Shawat sir. So on behalf of all my students, all genius students, all scientist students, I welcome a lot to Vikas sir. He has agreed within no time. जैसे मैंने कहा, एक जीनियस की यही पहचान होती है, एंड दैट जीनियसिटी आई हैव सीन इन वेरी फ्यू पीपल. वो अब्दुल कलाम साहब में मैंने देखी थी. अब्दुल कलाम साहब को मैंने एक छोटा सा लेटर लिखा था आज से 10 साल पहले, व्हेन आई वाज इन BHU डूइंग सम रिसर्च वर्क. तो मैंने छोटी सी हेल्प मांगी थी, एंड इमीडिएटली ही वाज एग्रीड एंड ही टेक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर मी. तो सिमिलर बिहेवियर मैंने सर का देखा कि ही इज जस्ट, हम लोगों ने छोटी सी मुलाकात की थी कहीं पे, एंड देन आफ्टर दैट ही वाज लिंक्ड वेरी मच टू मी. ही इज वेरी अफेक्शनेट, एंड सर हैज अ लॉट ऑफ कंट्रीब्यूशन इन द पेटेंट एज ए पेटेंट अटॉर्नी. और जैसे मैंने कहा कि सर मेरे बच्चों के लिए थोड़ा सा आ जाओ, टाइम निकाल लो, मैंने ऐसे बहुत लोगों से रिक्वेस्ट किया होगा, बट बहुत कम लोगों ने ऐसे रिस्पॉन्स दिया जैसा सर ने दिया. आई एम वेरी थैंकफुल टू यू सर, एंड ऑल माई ऑन बिहाफ ऑफ ऑल माई स्टूडेंट्स that wants to learn new things and daily they are learning new things. तो सर आप थोड़ा सा अपना ब्लेसिंग दीजिए, थोड़ा सा अपना बताइए एक्सपीरियंस पेटेंट के बारे में. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच. वेलकम सर. Good afternoon to all of you. Good afternoon. Good afternoon. Today we will good afternoon all. Today we will discuss very brief and very systematic information about IPR. how these basic information of IPR can be used by you in your day-to-day life, whether in your studies, whether in your business, any business activity, any commercial activity, whether you are in a profession, whether you are as an employer. I will try to inform you, intimate you the very basic, so that you either as a student of life science, as a researcher, or as a faculty member, or as a employer, or as an employee, or whatever in capacity you are working, you should have these basic information about IPR, so that in your lifetime, whenever you come across with these types of hurdles, any legal issues, then at least you can have some basic understanding that okay, I can resolve it in this manner. So in this way, I have planned structure this webinar with the help of sir. And now, sir, what is the preferred mode? We should try in English Hindi mix or only English? दोनों में सर, दोनों में कंफर्टेबल है बच्चे. हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बोलिए, कोई इशू नहीं है. We are comfortable in both languages, sir. हम लोग सब पंजाबी है ना, पंजाब हरियाणा के. Yes, sir. ठीक है, फिर हिंदी में अपने उसमें ज्यादा अच्छा आप लोगों को भी अच्छा लगेगा. अरिंदम वेस्ट बंगाल से है, मनीष हिमाचल से है, बेसिकली निरितिका बेंगलोर से है. तो ऐसे बहुत डाइवर्सिटी है सर. जी जी sir, we are comfortable in English, sir. You can sir. Okay. Also, very both language. Okay, we can mix in between. So I think administration should allow me to share the screen. I think they have disabled to share the screen. yes sir. Just a minute sir. I am making you host. फिर आपको हो जाएगा. Yes sir. Now you are host. You can share your screen, sir. It is so. All disabled participant screen sharing. गुरप्रीत, विकास सर को होस्ट बनाओ. और आपके एंड में चला गया. सर आपने हाँ, वो मेरे पास भेजो ना. हाँ जी. विकास सर को भेजो. ठीक है, वो क्लिक करो तो सर को उधर हो गया गलती से. मेक होस्ट. यस विकास सर, नाउ यू आर होस्ट. नाउ यू कैन शेयर योर स्क्रीन सर. नो.
हो गया। हाँ, अभी स्क्रीन दिख रहा है, विजिबल है आपको स्क्रीन? हाँ जी सर, Yes, sir. बहुत 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 It is बढ़िया है। visible. बहुत अच्छा है। और अभी 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 वर्क होती है स्क्रीन दिख रहा है सर? जी सर। क्या है, मैंने अभी वेट कर रहा हूँ उसमें। जी हाँ हो गया। स्क्रीन हाँ जी सर, बहुत बढ़िया, एकदम क्लियर है। सिंबल्स है वो इंडिकेट कर रहे हैं, दो सिंबल्स आर इंडिकेटिंग दैट these properties, these intellectual properties are already registered with the government organization, and if someone misuse this property, it may recall a liability. So उसको उस तरीके से देखेंगे, उसमें एक liability create हो जाती है. Once if a property is misused, then it can create a liability on you who is misusing. Sometimes you see that intellectual property rights, there is concept of property. Okay, so property property, what's your conception about property is that either this house, this system is my property, it belongs to me. But how do you prove it? If you have a car or a vehicle, you have some registration certificate issued by government, like Tamil Nadu government, Punjab government, whatever it is. If you own a house, then you have some sale deed, assignment deed on a stamp paper duly notarized, okay, by registrar. And if you have some electronic item like digital goods like laptop, mobile, then you have invoice. That is will prove that okay, this particular laptop belongs to you, because in invoice you see that it is written model number this and this. Then they write your name, your mobile number, your address. So that if sometimes if there is theft of your property, then you can complain to the government that someone has stolen my property, and this is the proof that that property belongs to me. So it is very much required that any property should be have some system of recognition, either by government or by through some agency or through some recognized. So the normal civil property has this already established system of giving the certificates or the papers by which you can prove the ownership. In the same way, whether you go for trademark, whether you go for industrial design, whether you go for patent, they give you some certificate. The government will provide you certificate and recognize that this particular trademark, design, or patent belongs to you. Like this is a trademark Nozomi. So Nozomi, they have given certificate and they have written Nozomi in the certificate. So you can easily identify that Nozomi belongs to a particular company. So if I use Nozomi for the product or service which are similar to Nozomi company, then I am at fault. If I am using the same design, suppose I am using the design of Maruti Swift, then Maruti can claim liability over me that I am misusing the design. In the same way, if I am using the patent of any pharmaceutical company, any mechanical engineering company, and producing the product or patent, so product or process out of the patent which is already granted in their name, then also there is a liability. So means government has recognized intellectual property rights like trademarks, patents, copyright designs, and you can put a case, litigation, or complaint against that person who is misusing a property by just providing the copy of the certificate. And in the same way, you see that copyright there is also certificate. So all the government are recognizing this. So there is the issue that remaining meeting time is 8:30. Is I think after 10 minutes license from June. No sir, we are in the process of getting the license because it's in dollar payment. So we'll connect again after it's disconnected with the same ID. Okay, no problem. So this is the okay. This is also this all the intellectual property rights are duly recognized by government, and there is a provision of granting a certificate and recognizing the rights in the intellectual property. So this is very much important. So like your physical property, civil property, statutory rights granted by government, yes. In the same intellectual property, statutory rights granted by government, yes. So आप ये नहीं सोच सकते कि सर ये तो प्रॉपर्टी अलग तरह की प्रॉपर्टी, इसमें क्या राइट है, ये तो डिजाइन बोतल इसने बनाया तो आई कैन ऑल्सो मैन्युफैक्चर द सेम बोतल. नो, दिस इज ऑल्सो प्रॉपर्टी. लाइक जैसे आपका है ना, आपका मकान, इफ योर हाउस, यू कैन अलाउ समवन टू लिव इन इट, यू कैन रेंट इट आउट, यू कैन लाइसेंस इट, यू कैन लीज इट. इन द सेम वे you can rent out your intellectual property. You can license someone to manufacture the design which you are the owner. So बोतल का स्पेशल डिजाइन है तो आपने सर्टिफिकेट ग्रांट हो गया, so you can allow someone to manufacture and you can get a royalty. So this is the philosophy behind this
particular right. Now, so basically, we are dealing more principally with 4 types of intellectual property. One is patent, one is copyright, one is trademark, and one is industrial design. We will principally deal with some other rights like geographical indication also there, like पंजाब का फुलकारी है तो वो हरियाणा है, आपका कुछ हिसार वाला एरिया है, आपका पटियाला वाला एरिया है, इंडिकेशन टोटल डिफरेंट है. Okay, but principally we will deal on patent, that is for invention, technical intervention, and it can be achieved by filing an application and examination by patent office. Then they will grant the patent to you. Then there is a copyright on your, जैसे आप लोग बुक्स लिखते हैं, पोएम्स लिखते हैं, कोई लिटरेचर लिखते हैं, कोई पेंटिंग बनाते हैं, all types of these creative works will come under copyright. Then there is a trademark, like UC Milton, Shallow, some Jabronics, some audiovisual system Jabronics, so and some institute like IIM, Kojikor, so or like BSNL or product like Bata. So these are the goods and services being identified through a special symbol. So these are trademarks. Then last one is the industrial design. That is for external appearance, shape and configuration, surface and surface pen. Like you can easily identify that this is the pilot pen. Okay, this is a Hyundai car, this is a Maruti car, and this is a Milton bottle, this is a Kinley bottle. So you can identify some products, special products and services by their shape and configuration, because functionality is same. If you see the pilot pen and some other gel pen, they are used for writing, but the shape and configuration of one pen and two pen, maybe one and or two pens may differ. Okay, so this is the characteristic. Then we will see trademarks. First of all, we will see trademarks. You see, this is a packaged drinking water. आप लोग लाइफ सेंस किया तो packaged drinking water है, इसको properly purify वगैरह है ना एक फिल्टर के थ्रू, और इसको it is ready to sell in market. Okay, so once it is ready to sell in market and you see the selling this type of bottle, so what is your impression? Should I purchase or not? Once the same bottle with the same water is being labeled with this package, then your impression will change. Now you will be able to easily purchase this product. Even you won't see, sometimes you won't see the date of manufacturing, date of expiry, whether it is BIS, ISI or ISO standard maintained or not. What are the ingredients? You don't see. You just see the Bisleri. Means this particular name is such a value that you are so much of habitual, or you can say confident of the brand. You are aware that okay, it's a Bisleri water, then it must be safe water. So this is the value of brand. So you can imagine how a company can allow the other one to use this mark when they have get so much of reputation out of the mark. तो इसीलिए ये ट्रेडमार्क का मिसयूज का कभी जो इशू होता है तो कंपनी बहुत स्ट्रिक्ट हो जाती है, क्योंकि उनको लगता है कि द कंपटीटर में सेल द प्रोडक्ट द सेम ब्रांड बट विद द लोअर क्वालिटी. Whom you will blame if you find the product lower quality? You are not aware it's a pirated product or the counterfeit product. You will say okay, it's a company product which is deteriorated, which is the low quality. So you will blame the company and you will think very ill about the company, and the reputation will be tarnished. So that's why these companies will take the action if somebody is misusing the mark. That is more important. Financial loss they can manage because they have good revenue. But thing is that the reputation, the customer confidence that they might be losing in such situation. That's why they are so serious about the infringement issues. So now you can see that how people are misusing the Bisleri is the main brand. Okay, it's the registered mark. Now see people how they are misusing. Someone is using Balsari, someone is using Bilsari, someone is using Bisleri. And now you think, you see, okay, this is minor spelling mistake. Okay, this may be coincidence. Okay, they might have not aware about the Bisleri, but see the packaging style and the bottle style. So all these are coincidence? No. It gives clear indication that they want to copy your product, they want to get advantage of your name, your brand name, your value, your dignity. So those types of issues may come under the copyright trademark infringement or trademark violations. So this is a message for you also, that sometimes you may think, okay sir, we are launching the packaged drinking water. Now
we are using a name Bisleri. We are using another name which is similar to Bisleri but not Bisleri. And you will argue that, sir, I have changed the name of spelling of Bisleri to some other. We are using BIC Bicleri, BICLERI. And you will say that, sir, I have used S, I have used C, not S. So my spelling different, so my product is different. No, answer is no. As per law, it is not allowed, because if you see the phonetic, Bicleri and Bisleri seems phonetically similar. And if you order via telephone, WhatsApp call or telephonical call, it may be a problem that customer may see, okay, Bicleri, okay, he may presume it Bisleri because he used to listen the word Bisleri. So he may supply you the different product. Means if someone is asking for Bisleri and he may supply Bicleri. So those types of issues may be there. So to protect the original manufacturer, the brand owner, the trademark law is there, and which is very important law. Now you see home lights. It's a mark of ITC, and now someone is using home lights. It's similar surface pattern, similar lining, similar color combination. So it's a clear case of infringement. So those things should be avoided. I think we should restart because there's a 1 minute is there. Yes. Because who wants हिंदी लैंग्वेज? हिंदी लैंग्वेज में किसको जानना है? प्रीति को, नवीन गुप्ता? प्रीति को। अच्छा, मैं बता देता हूँ। सर अभी ज्वाइन कर रहे हैं, 5 मिनट में ज्वाइन कर जाएंगे। पेटेंट राइट का मतलब अभी साइंटिफिक वर्ड में आप सबको ये पता है कि शेयर करना है हर चीज, और हम सारी चीजें शेयर कर देते हैं। अभी एक हैबिट बना लो, अपने टीचर के साथ शेयर करना है बस, जो आपको गाइड कर सके कि ये चीजें नॉवेल है कि नहीं। जैसे एक हमें ICMR से एक प्रोजेक्ट का ऑफर हुआ कि आपको वैक्सीन बनानी है, आइडिया दो। मैंने उनको बहुत ही नॉवेल आइडिया दिया, राइट, बट वो चोरी हो गया। मैंने देखा कि वो आइडिया देते ही ICMR के साइंटिस्टों ने ही चोरी कर लिया उसको। अब चूंकि उन्होंने फटाफट मांगा था, वैक्सीन का दौर ही चल रहा था और कोविड-19 का प्रॉब्लम था, तो मैंने शेयर कर दिया। अब आइडिया कभी भी आपका जो जनरेशन होता है वो आपके ब्रेन की उपज है, ठीक है ना, तो उससे आप बहुत पैसे कमा सकते हो। लेकिन हम लोग बहुत हल्के में लेते हैं अपनी चीजों को, दूसरे की चीजों को बहुत वेट में लेते हैं, राइट। सो ये चीजें उल्टा करनी है, ठीक है ना, ये चीजें उल्टी करनी है। हमने दूसरा आईटी तो नहीं, आज आईटी का बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। आईटी वही है ना जो, नहीं सर सही है, सही है ना जो भी आपने भेजी। अच्छा, हाँ जी, राइट। तो मैं यही कह रहा था कि बिकॉज आज का दौर ये खत्म हो गया। अभी हम लोग को सबको पैसे चाहिए, किसको पैसे नहीं चाहिए? अगर महात्मा बनना है तो साधु बन जाओ, अदरवाइज हर साइंटिफिक वो आइडियाज बीएससी लेवल में भी आते हैं, ठीक है ना, एमएससी लेवल में भी आते हैं, रोज आते हैं। इवन आपको जब मैं पढ़ा रहा हूँ साइटोस्केलेटन, तो उसमें बहुत सारे ड्रग कैसे डेवलप हुए इसका भी आइडिया आपको दिया मैंने, ठीक है ना, उसकी मैकेनिज्म लोगों ने डेवलप करी, ठीक है। तो सर यही बता रहे हैं कि देखो 3-4 चीजें हैं। जैसे अगर मान लो बिस्लरी की बॉटल आप कर रहे हो, सर ज्वाइन नहीं की, सर को मैसेज कर दो। सर को क्या हो गया? आई थिंक सर फॉरगेट, लेट मी मैसेज। आगे भी क्या सर? नहीं आया अभी, मैं उनको फोन कर देता हूँ। वो उनको लगता होगा कि, चलो मैं बता देता हूँ। इट्स अ वेरी, जी सर, वो स्क्रीन को अलाउ करिए। हाँ जी सर, जी सर, जी सर, जी सर, हाँ जी सर, हो गया सर आपके। ओके सर, 1 सेकेंड। जी सर, जी सर, नो प्रॉब्लम। तो प्रीति यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। अगर आपको लगता है कि इफ यू हैव एनी क्वेश्चन ना, तो आप बीच में भी पूछ सकते हो। हाँ प्रीति, हाँ प्लीज। प्रीति एक्चुअल में लखनऊ से है, हिंदी मीडियम इनको ज्यादा समझ में आती है, इंग्लिश भी समझ में आती है, बट हिंदी में इनको शी इज अ जीनियस। सर ये स्क्रीन है, फेल टू स्टार्ट द विंडो यू सेलेक्टेड। 1 सेकंड, दिस इज कमिंग। नहीं सर, होस्ट तो आप ही हो सर, आपके एंड में है सर शेयर स्क्रीन।
नहीं 1 सेकंड मैं देखता हूँ, अभी खुल जाएगा, कोई इशू नहीं। डाउनलोड हाँ स्क्रीन आ गया सर, आपको आ रहा है, प्रेजेंटेशन आ रहा है? हाँ स्क्रीन आ गया सर। प्रेजेंटेशन आ रहा है क्या? जीमेल आपका खुला हुआ है ना, प्रेजेंटेशन पे क्लिक जीमेल नहीं जीमेल नहीं खोलना ना। नहीं जी, प्रेजेंटेशन पे क्लिक करिए, प्रेजेंटेशन पे क्लिक करिए, आ जाएगी। सेकंड सर, 1 सेकंड अब ठीक है। हाँ प्रेजेंटेशन क्लोज हो गई थी ना। यहाँ से लगाओ सर। इन वो स्क्रीन ओपन हो रहा है, तब तक कोई इंक्वायरी तो पूछ सकते हैं। हाँ प्रीति बता रही, पूछ रही थी, प्रीति वाज हैविंग सम क्वेश्चन। प्रीति बताओ जरा क्या क्वेश्चन है बेटा। प्रीति हमारे इंस्टीट्यूट की सबसे जीनियस गर्ल है एंड बहुत अच्छे आइडियाज उसके पास होते हैं। तो वो यही पूछ रही है कि पेटेंट जो हम कराते हैं तो उसमें बेसिकली क्या आइडिया है। जैसे हम लोग अपनी जनरली बातें क्या करते हैं, शेयर करते हैं। यूरोपियन कंट्री चाहती है कि हमारे पास शेयर कर दे, ठीक है, लेकिन इनको मैं यही बता रहा था कि हर बातें शेयर नहीं करनी है। अपने जो आइडियाज हैं उसको लिखना है, उसको डेवलप करना है, उसको फिर नॉवेल्टी में देखना है। और नॉवेल अगर होती है, चीजें बढ़िया है, जो एक्सक्लूसिव है, जो कहीं नहीं है वर्ल्ड में, अगर आपको लगता है तो आप फिर सर के साथ डिस्कस कर सकते हो, जो कि पेटेंट अटॉर्नी है, तो आपका कोई लीक नहीं होगा। बाकी प्लेटफॉर्म पे शेयर कर दोगे और फिर सर से डिस्कस करोगे तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो लीक हो गया आइडिया। इसमें सर, इसमें बेसिकली देखा जाता है कि आपका पेटेंट है, उसमें नोवल एस्पेक्ट और इन्वेंटिव एस्पेक्ट कितना है। यस, एक इन्वेंटिव, एक्चुअली नोवेल्टी के साथ साथ इन्वेंटिव एस्पेक्ट भी होना चाहिए जी। दो मैटर या दो मॉलिक्यूल को मिक्स करना है, दो केमिकल को मिक्स करना है, उनकी प्रॉपर्टी नॉन है। आपने इसको मिक्स करके जो थर्ड प्रॉपर्टी अचीव करी, उनका एडिशन है। व्हाट इज द नोवेल्टी, व्हाट इज द इन्वेंटिव एस्पेक्ट? इट वाज वेरी ऑब्वियस। लेकिन अगर आप उन्हीं दो केमिकल को मिक्स करके कोई अलग से सबस्ट्रेट के साथ उसको यूज करोगे और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज एनहेंस, जैसे इलास्टिसिटी उसकी बढ़ जाए, उसकी बॉन्डिंग बढ़ जाए, उसका कुछ ऐसी कोई प्रॉपर्टी नजर आए जो पहले अवेलेबल नहीं थी। यू हैव टू ब्रिंग समथिंग आउट ऑफ बॉक्स। ऐसा नहीं कि अगर आप रूटीन प्रॉपर्टी को डिस्प्ले कर रहे हो दो सब्सटेंस को मिक्स करके, तो इट्स नॉट इन्वेंटिव। इन्वेंटिव मींस अब आप किसी थर्ड एलिमेंट को ला रहे हो जो बिल्कुल, या उसका पर्टिकुलर रेशियो डिफाइन किया आपने कि पर्टिकुलर इसी रेशियो पे वर्किंग है या पर्टिकुलर इस टेम्परेचर रेंज पे वर्किंग है। तो जब तक आप सेट ऑफ कंडीशन डेवलप नहीं करोगे जिससे आपका टेक्निकल मतलब इट शुड बी समथिंग, मींस यू शुड हैव डन सम टेक्निकल होमवर्क। अगर अपन कहें, ऐसा नहीं कि आपने रैंडमली सोचा और हो गया। कोई स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होना चाहिए कि कैसे इनको मिक्स करना है, किस कंडीशन में करना है, दो मैटर को, उसमें मॉइस्चर कंटेंट कितना से कितना % हो सकता है। तो वो अभी मैं डिस्कस करूंगा लास्ट में। शायद अभी मेरे को आपने 40 मिनट का सेशन दिया अभी आपने, ठीक है ना, इसमें जूम में। हाँ जी, नहीं सर, आप आराम से प्रेजेंटेशन करिए, बच्चों के साथ इंटरेक्ट करिए। वी हैव आवर ओन टाइम, नो प्रॉब्लम। पहले अपन इसको थोड़ा खत्म करते हैं ताकि बच्चों थोड़ा सा चीजों को। यस, दिस इज नॉट टाइम टू डिस्कस एनी क्वेश्चन अदर देन वी शुड कंप्लीट। हाँ, लेकिन ये रेलेवेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिल्कुल। तो अभी अब देखिए, दो तरह के मार्क्स, डेस्क्रिप्टिव मार्क और पॉइंट मार्क। अब जो शादी.com है, दैट इज अ डेस्क्रिप्टिव मार्क, क्योंकि आपको पता चला इट रिलेटेड टू मैट्रिमोनियल वेबसाइट। प्रेजेंटेशन नहीं आ रही सर आपकी। इतना फेमस है, लेकिन आपकी प्रेजेंटेशन नहीं आ रही। नहीं सर, ऐसा क्यों? एक बार उससे पूछो, गुरप्रीत से पूछो एक बार, प्रेजेंटेशन दिख रहा नहीं दिख रहा? प्रेजेंटेशन आ रही सबको? नहीं सर, नहीं आ रही। नहीं सर, अच्छा एक खुला हुआ जस्ट। हाँ, फिर से आप ना पहले प्रेजेंटेशन ओपन करके कराइएगा सर। अभी हाँ आ गई, अभी आ गई। ये सर अब आ रही है। अभी दिख रहा है आपको? हाँ जी सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। कौन सा डेस्क्रिप्टिव मार्क वर्सेस पॉइंट मार्क वाला दिख रहा है? हाँ जी दिख रहा है। यस सर। ओके, अब नाउ यू कैन सी शादी.com, बिग बाजार, क्यूट कॉर्नर, these are good mark, but they are very weak mark. अब देख लो, corner you can identify, okay, it might be a sweet soap,
Big Bazaar, you can easily identify it's a very big market selling various goods. Okay, so those marks which are descriptive in nature are termed as weak marks. But see, Zomato, Swiggy, Kodak. By listing Zomato, you cannot identify it's related to food app. By reading Swiggy, you cannot identify it's related to Swiggy app, food app. But now these are become so famous that you can identify. Otherwise, by dictionary meaning, you cannot identify. But at the same time, by Shadi.com, you can identify it's a matrimonial website. So those types of trademarks which are descriptive in nature should be avoided. We should bring some innovative mark like Zomato, Swiggy, and Kodak. So they will give you more protection. Because suppose Big Bazaar is there, I will write bigger bazaar because I am also using dictionary word. So if he want to stop me, I have a argument that I am using the dictionary word. But if I am using Zomato Plus, then Zomato may easily put a case against me that I am misusing his word Zomato, and Zomato doesn't have any dictionary meaning. So I cannot say I am using dictionary meaning. He will easily blame a liability on me. So it's better always to use a point mark. And see these types of marks. The word mark is Ranbaxy is a word mark, and abbreviation B.I.P is a word mark. Then letters BMW letters is a good trademark. Then numerals 8 p.m. 5:55 washing cake. It's a numeral. That's a numeral mark. Then arbitrary mark. Apple for digital goods. Apple for computers. So apple is a fruit, but if you are using for computer, it's a good. Cherry for polish. Cherry has nothing to do with polish, but cherry. These types of things are there. And orange travels. It's not of orange fruit, but it's the orange travels. So mean to say, trademark can be any symbol, any name, which can identify your goods and services from those of others, which can distinguish. Like Apple and Samsung, I can identify Apple is one brand and Samsung is another brand. So this is the trademark. And you should avoid these things. Starbucks, Sardar Bucks. So you see the similarity. Starbucks, Sardar Bucks, overall similarity in listening, phonetics, and word. And moreover, the logo is also circular. One logo containing a queen and another logo containing a man with turban and the mustaches and beard. So means they are looking very similar. So what they did, they changed to Sardar Bucks to Sardarji Bucks Coffee with this logo. They settled that okay, we will not use Sardar Bucks because it is looking similar to Starbucks. We are using Sardar Ji Bucks. So now these type of settlements can be done if they some conflict like this. And now they are using Sardar Ji Bucks to avoid any dispute with Sardar Bucks, Starbucks. See the similarity in the mark. One is Puma. You already know Puma very well. There are garments, there are bags, various articles are there. And another is a Poodle. Poodle is also a breed of dog. You see that both are, one is Puma, one is Poodle. But the way they have represented it looks that they are almost similar. So court, it's a German case. The court has asked Poodle. The court has asked the Poodle to remove the mark, that to discontinue the mark because it was looking like a Puma. And people are also using these tactics like Pizza. It is a big brand, and someone started using Pizza Ghar with the same logo, with the same hut. Those type of misconceptions may also lead to the trademark infringement. And also in domain name, Yahoo.com is a domain of Yahoo Incorporation, and one of our Indian person, Akash Arora, used yahoo.co.in. Now see, what happened? What customer will think? He will see that okay, it's an Indian server, email server. So they are using yahoo.co.in. So basically, because you see the Gmail, Google, not .in.com as a principal mark. You see first name. So here first name is Yahoo. So court has said that though it is a domain name, but it is equivalent to trademark. So they asked Akash Arora to discontinue using the yahoo.co.in.
So in the same way, Akash Oda has to surrender the domain name to Yahoo. So these types of things are there. So you should be very, very careful. BMW is a big brand. It's a big motor company, and someone started DMW for e-rickshaw. Deshwar Motor Works. And now see, they are selling, okay sir, DMW e-rickshaw. Now both are in transportation line. And you see BMW, DMW. Now everyone is electrical vehicles and hybrid vehicles are in market. So it is very to assume that BMW will also into the hybrid market, e-rickshaw, whatever it is. So now if BMW and DMW coexist, people will think, okay, DMW, sometimes they confuse, okay, it's a possibly it might be BMW. So to avoid this confusion, court has asked DMW to remove the name DMW. They can use Deshwar Motor Works, but they cannot use DMW. ठीक है, देर आर, लेकिन कभी कभी बहुत बड़ा आप लोग जैसे कि लाइफ साइंस के या केमिकल साइंसेस के हैं, तो DMW, BMW ये सब चीजें, याहू वगैरह, ये तो चलो ठीक है, एक दीज आर पार्ट ऑफ इन्फ्रिंजमेंट. बट अगर ये इन्फ्रिंजमेंट अगर आपको मेडिसिनल प्रोडक्ट्स में होने लग जाएगा, देन इट विल बी अ बिग प्रॉब्लम फॉर यू. लाइक हियर यू सी देयर आर टू प्रोडक्ट विद द सेम ब्रांड, Medzone. One is midazolam injection, one is pantoprazole. You see, midazolam is for, what is midazolam? Midazolam is for like local anesthesia. आप लोग देखते हो ना, कहीं पर कहीं कुछ किसी एरिया को काम करना हो, सिडेट करना हो, किसी पर, तो जहाँ पर आपको सर्जरी करनी हो, वहां पर आपको मिडाजोलम का इंजेक्शन दे देंगे, तो वो एरिया थोड़ी देर के लिए सुन हो जाएगा, तो पेन कम होगा. अनदर इज मेडजोल फॉर पेंटाप्रोजोल. पेंटाप्रोजोल आपको पता है आजकल जो गैस्ट्रिक इश्यूज में काफी लोग यूज करते हैं, एसिड रिफ्लक्स कंडीशन में. तो नाउ सी द टू ब्रांड्स विद द टू डिफरेंट फिनोमिना आर कमिंग विद द सेम ब्रांड, मेडजोल. और आप देखते हो मेडिकल स्टोर पे कई बार ट्रेंड बंदे नहीं होते, लड़कों को बिना उसकी ट्रेनिंग बी फार्मेसी के बिना भी आप लोग अपॉइंट कर लेते हैं, कुछ लोग अपॉइंट कर लेते हैं और कुछ लोग शॉप को रन करते हैं, कई बार आपने देखा होगा. तो वहां पर अगर सपोज कीजिए अगर आपको पेंटाप्रोजोल का इंजेक्शन मांगा और आपने मिडाजोलम का दे दिया, या मिडाजोलम का मांगा उसने पेंटाप्रोजोल का दे दिया, तो मतलब जो पेशेंट है उसकी हालत क्रिटिकल हो सकती है, इट मे लीड टू डेथ ऑल्सो. ओके, सो इन मेडिसिन देयर इज वेरी स्ट्रिक्टनेस दैट दीज ट्रेडमार्क कैन नॉट बी सिमिलर. अल्टीमेटली ड्रग रेगुलेटर ने फिर बोल के इसको मार्क को रिमूव कराया. जो फर्स्ट ओनर था उसका अलाउ किया, सेकेंड ओनर को बोला कि आप नाम चेंज करिए अपना. ओके, नाउ एक वन मोर थिंग आप लोगों ने देखा है कि शूज वगैरह, सो दीस आर बिग कंपनीज, whether they are not this business, like Reliance is almost in every. If you want to start Renault for audiovisual equipment like speakers, they won't allow because it's a famous mark. Okay, even though you are in different service, but you will not be allowed. So it was all about trademark. Then come to copyright for literary work, dramatic work, musical work, artistic work, cinematography. So in सब चीजों के लिए copyright is a right for these things. जैसे आपने कोई मूवी बनाई है तो उसके गाने हैं, लिरिक्स हैं, या आपने कोई आर्टिकल लिखा है, या आपने कोई पोएम्स लिखी है, आपने कुछ पेंटिंग बनाई है, तो इसको कॉपीराइट कहते हैं आप लोग. लेकिन कॉपीराइट की एक बहुत बड़ी कैरेक्टरिस्टिक है, इट शुड बी फिक्स्ड ऑन मीडियम. वन सेकेंड. It should be fixed on medium means if some creativity comes into your mind, you can just type it on paper and email to you, so that अगर 5 दिन बाद अगर कोई कहे साहब मैंने इसको कॉपीराइट कराया, तो आप क्लेम कर सकते हो, देखो मैंने 5 दिन अपने आप को ईमेल किया हुआ था 5 दिन पहले, द प्रूफ इज विद मी दैट दिस पर्टिकुलर क्रिएटिविटी वाज डन बाय मी. अगर आपने ये दिमाग में रखा और किसी ने सेम चीज प्रोड्यूस कर दी और आप कोर्ट में बोलोगे सर ये मेरे माइंड में चल रहा था, नो वन विल बिलीव यू. These are not the these are not allowed evidence that are allowed on records. So you should have something tangible there to prove that the creativity was already done by you 5 days back. So what is the best way? You can just type it and email to your own email, and you can show to court that sir this email was done 5 days before. You can see the screenshot. So those types of things you can do. And in copyright, there is no protection on idea. There is protection only on the expression, how you write the particular article. If you write something on the plant varieties, then the language, the way you write is a protection. I can also write on plant varieties, diversity, nature. But the way you write is your copyright, the way I write is my copyright. The way I explain the Newton's law is my
the copyright, the way you explain the Newton's law is your copyright. So the expression is the copyright, not the idea, है ना. अदरवाइज पुरानी मूवीज आपने देखी कि पुरानी मूवीज में क्या होता था, जनरली एक स्टोरी का एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होता था. Actor from a poor family, the girl from the rich family, and the some villains were there. थोड़ा सा fighting और फिर last में दोनों they got together. So but location was different, costume was different, lyrics was different, the presentation of information was different, the dialogues were different. So means idea तो same है लेकिन उसका presentation different है. तो copyright में आपको presentation में तो way of expression matter करता है, idea matter नहीं करता. आपके जो सॉफ्टवेयर बेस्ड आपके जो इनोवेशन होते हैं उसमें भी ज्यादा अगर आपके कॉपीराइट एलिजिबल होते हैं. पेटेंट एलिजिबिलिटी थोड़ी मुश्किल से आती है उसमें, तो अलाउ कम करते हैं. बेसिकली कॉपीराइट सॉफ्टवेयर प्रोटेक्शन इज देयर. कुछ एक्सेप्शंस है, आप पढ़ सकते हैं क्या क्या एक्सेप्शंस हैं. आप लोग जो अपने क्लासरूम स्टडीज के लिए फोटोकॉपीज कराते हैं उसके लिए कोई कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट नहीं है. आपके टीचर्स आपको नोट्स डिक्टेट कराते हैं तो उसमें कॉपीराइट का कोई इशू नहीं है. जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में कोई नहीं है. अगर आप किसी को समाज जागरूकता के लिए, जैसे अभी कोविड सिचुएशन है तो आप लोग सबको जागरूक कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह के लिए, थोड़ा सा हाइजीनिक के लिए, तो वो और फ्री, मतलब दैट इज यू आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग फ्रॉम ऑडियंस. तो वो चीजें आप किसी का मटेरियल उसमें लेके पढ़ सकते हो, किसी की पोएम गा सकते हो वहां पर, तो वहां पर वो इन्फ्रिंजमेंट नहीं है क्योंकि इट्स फॉर सोशल कोज. ओके, तो यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन है, वहां पर कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट नहीं होता. नाउ कम टू अनदर राइट, दैट इज इंडस्ट्रियल डिजाइन. आप लोग सब लाइफ साइंस के हो, आप लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किससे देखते हो? माइक्रोस्कोप से देखते हो. तो देखो ना, 3 अलग अलग माइक्रोस्कोप है. तो व्हाट इज डिफरेंट? ऑल हैव सेम फंक्शन इज सेम, टू रिजॉल्व एन ऑब्जेक्ट टू पर्टिकुलर रिजोल्यूशन 100x 200x whatever. But what is the difference of between these 3 microscope? The difference is the shape and configuration of microscope. That is most important because function is same but the outer configuration appearance is different. So this is known as industrial design. अब इन दोनों से आप कंपास से, अगर आप प्रोट्रैक्टर से अगर अपना सर्कल बनाओगे 3 सेंटीमीटर रेडियस का, तो बराबर बनेगा ना. फंक्शन इज सेम लेकिन इनका क्या है, शेप एंड कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है. तो जो बच्चा है आपका या बेटा है बेटी, वो चाहेगा सर मुझे लेफ्ट वाला मिल जाए, आई वांट लेफ्ट सर, लेफ्ट, दिस इज मोर अट्रैक्टिव. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ डिजाइन, दैट इट क्रिएट्स, इट्स एन आई अपीलिंग. So it can be registered as a design. So the function is same, but the article is different. So this is also design. What is this bottle? किस ब्रांड का बोतल है? Basically it's a Kinley brand. अगर आप Kinley नहीं भी लिखा तो भी you can identify it's a Kinley bottle. It means shape and configuration is very important. It is also intellectual property. By this shape and configuration you can identify the bottle belongs to a particular company. Then it's a industrial design. How you can protect the industrial design? You see, you have to give the front view. This is rice. It's a solar rice cooker. Front view, left view, right view, back view, perspective view, and top view. If you give those views, we will come to the last topic, that is patent. So basically, patent is for it's a technical intervention. It's a part of invention. And it can be invention can be either a new product or a new process, which is non-obvious or technical advance. It should not be mere rearrangement. It should be non-obvious or technical advance. It can be used and manufactured in industry. Whatever invention you are using, you are creating for product or process, it can be developed it can be multiplied with industrial process. It should not be like this. So you have create a product, but it takes 5 years to product a single product. It is not an industrial application. You cannot give anything to society by this patent. अगर आपका एक प्रोडक्ट ही 5-6 साल में बन रहा है तो कितने प्रोडक्ट बना पाओगे 20 साल के अंदर? क्योंकि पेटेंट इज ओनली फॉर 20 ईयर. 2-3 प्रोडक्ट है, 4 प्रोडक्ट, सोसाइटी को क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला. तो इट शुड बी रिप्रोड्यूसिबल इन इंडस्ट्रीज. So basically it is for functional aspect. It is for function aspect. It is not for outer configuration look. Outer configuration look के लिए आप डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन आपका इन्वेंशन है तो आप क्या करेंगे? पेटेंट. So basic principle, it's a territorial nature. अगर आपने इंडिया में पेटेंट फाइल किया तो आपके राइट्स इंडिया मिलेंगे. उसको जापान में कोई भी कॉपी कर सकता है. अगर आपने जापान में नहीं किया तो इट इज लिमिटेड फॉर 20 years.
It is limited for 20 years. और किस एरिया में यू कैन फाइल इन इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, बायोटेक, फार्मास्यूटिकल, लाइफ साइंस, whatever area. Every area is free, except there are some exceptions like radioactive elements that cannot be patented, those types of invention, because there is a bar by government of India. अब देखिए आप एक लैपटॉप देखते हैं, एक स्मार्टफोन देखते हैं, एक टैब देखते हैं आप लोग, उसमें वेरियस कंपोनेंट्स होते हैं. स्टोरेज, तो स्टोरेज का भी एक इन्वेंशन हो सकता है, मदरबोर्ड भी एक इन्वेंशन हो सकता है आपका, कीबोर्ड, वायरलेस कीबोर्ड भी एक इन्वेंशन हो सकता है, बैटरी भी एक डिफरेंट लिथियम बैटरी या इको फ्रेंडली बैटरी, व्हाटएवर इट इज. ओके, एक डिस्प्ले का भी रिजोल्यूशन आजकल हाई सेंसिटिव आ रहे हैं, वो सब आ रहे हैं. तो एक लैपटॉप में इतने सारे पेटेंट हो सकते हैं डिफरेंट. तो अगर आपको एक लैपटॉप देखोगे तो यू कैन नॉट से इट्स वन पेटेंट, इट मे बी मल्टीपल पेटेंट. एक बेसिक इनोवेशन भी हो सकता है, जैसे कि देखिए आप ये सर कैन आई आस्क अ क्वेश्चन सर? अभी एक बार खत्म हो जाने दो बेटे, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे. पूछ लीजिए कौन पूछिए. यस sir, for example sir, I have designed a drug and the function of the drug is to sir cure ulcers in stomach, severe ulcer. Okay. Sir, now suppose a company sir, suppose now Arindam. Yes sir. I think the slide is about to come. Once I think then you will find the answer, otherwise you can ask. Okay, so okay sir. Because no problem, I think it will cover. There are some slides related to this. Okay. So no problem. basically you see this is a very primitive patent in innovation. Means ये देखिए आप इसमें पोर्ट बना हुआ है, इससे कैसे डबल लेयर करके खाने को ठीक मतलब खराब होने से बचाया जा सकता है. ये अफ्रीकन कंट्रीज में जिसको प्री स्टेनिंग जीर पोर्ट, इसको जीर पोर्ट बोलते हैं. तो डैम्प क्लॉथ, यहाँ मिट्टी का 2 लेयर उसमें पानी डाल दो ताकि वो वाटर गर्म पानी बाहर निकलता जाएगा भाप से और ठंडा अंदर ठंडक रहेगा, तो आपका खाना 4-5-6 दिन तक चल सकता है. तो कुछ तरह बेसिक इनोवेशन भी हो सकता है, जरूरी नहीं बहुत हाईटेक इनोवेशन हो आपका. ये देखो साउथ अफ्रीकन कंट्रीज में इनोवेशन यूज करते हैं, पानी भर देते हैं इसमें यहाँ पर, एंड यू कैन सी सारी हीट बाहर निकल जाती है इवेपोरेट होकर यहाँ छेदों से, पोर्स के थ्रू, और यू कैन हैव दीज योर फूड आइटम्स मतलब फ्रेश फॉर 5 to 7 days. So and it doesn't need any electricity. तो जहाँ अफ्रीकन कंट्रीज में प्रॉपर लाइटनिंग इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, वहां पर ये चीजें काफी यूजफुल है. तो प्रिमिटिव इन्वेंशन भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं बहुत हाई फाई इन्वेंशन हो, काफी छोटे इन्वेंशन भी हो सकते हैं. देखिए मैं आज I was seeing Kenya where he noticed a little girl walking to church in a shoe that were way too small. He later developed a shoe that grows. A shoe that lasts 5 years and adjusts to 5 different sizes, so that children living in the extremely poor can also always have a pair of shoes. तो ये देखिए जो 3 जगह इनको इसको एक्सपेंडेबल मैकेनिज्म दे, आप आगे के साइड पे, लास्ट साइड पे और बीच में. तो आप अपना पंजा लंबा भी कर सकते हो, चौड़ा भी कर सकते हो, तो हर जगह एडजस्ट हो जाएगा. तो छोटे छोटे इनोवेशंस भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि बहुत हाईटेक मशीन हो. एक सिंपल इन्वेंशन भी आपके लिए यूजफुल हो सकता है, सोसाइटी को बहुत कुछ दे सकता है. So कोई भी पेटेंट इन्वेंशन हमारे, if any invention come to us, then we have to have some criteria. First of all, we see whether the subject matter is allowable. Like कोई मेडिसिन है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग करती है, और आपने बोला कि नहीं सर ये अभी तक तो स्किन क्रीम में काम आ रही थी, अब नाउ ये आपको हेयर ग्रो फॉर्मुलेशन के रूप में काम में आ रही है. तो आपने क्या किया, सेम क्रीम को जो पहले आपके एंटीसेप्टिक काम करती है, वो हो सकता है हेयर रीग्रो में भी काम आ रही है. तो what you do, you just inform the second medical use of a known substance. So new use of a known medical substance is not patentable. अगर आप मेरे पास वो लेके आते हो तो मैं कहूंगा ये तो अलाउ ही नहीं है, तो इसमें तो नोवेल्टी चेक करने का फायदा नहीं, क्योंकि इवन इट इज नोवल देन इट इज नॉट अलाउड. सो कुछ मैटर नॉट अलाउेबल होते हैं, जैसे एग्रीकल्चर मेथड है, आप जैसे बीज को कैसे फेंकते हो, तो बीज को कैसे उसको बोते हो, तो इससे फार्मर रिलेटेड, सो वो पेटेंट अलाउ नहीं है. ठीक है, आपका सेक्शन 4 में जो आपके कुछ पेटेंट्स आते हैं, जो एटॉमिक एनर्जी, बेरिलियम, जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, वो पेटेंट आपके अलाउ नहीं है. तो अगर वो पेटेंट आप लेके आओगे तो पहले ही इसको हम लोग, मैं या कोई भी जो पेटेंट कंसल्टेंट है उसको पहले मना कर देगा, सही सर आप इतना मेहनत मत कीजिए, इसको अप्लाई करेंगे तब रिजेक्ट होगा. तो वो ऐसे करके उसको हम मतलब मना कर देते हैं.
उसके अगर अगर हमको लगता है सब्जेक्ट में अलाउेबल है तो हम बोलते हैं चलो इसकी नोवेल्टी चेक करते हैं, भाई नोवेल्टी क्या है। तो हम देखते हैं कि यूरोप में अप्लाई तो नहीं ना, किसी यूरोप में किसी ने पब्लिश तो नहीं किया, जापान में नहीं किया, इंडिया में नहीं किया, तो एक लमसम आइडिया बनाते हैं कि यार ये सब्जेक्ट मैटर नोवेल है नहीं है। देन इट इज नोवेल, देन वी गो फॉर इन्वेंटिव एस्पेक्ट। हम देखते हैं कि ये एलिमेंट जो इसमें कंपोजिशन है वो कितना इन्वेंटिव है, उसको कैसे मिक्स किया गया है, इसमें कुछ टेक्निकल फीचर्स हैं, टेक्निकल स्टेप्स है क्या। अगर वहां सक्सेस हो जाते हैं तो फिर हम जाते हैं कि ये इसका कुछ यूटिलिटी है, तो जनरली इन्वेंशन का यूटिलिटी होता है, तो वो इशू नहीं है। देन वी आस्क इन्वेंटर टू गिव फुल इंफॉर्मेशन, कौन कौन से अल्टरनेट यूज किए हैं, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स यूज किए, कौन कौन से सॉल्ट यूज किए हैं, उसके कौन कौन से वेरिएशन है, उसके कौन कौन से फॉर्म्स हैं, किस किस कंडीशन में रिएक्शन किया है, किस किस में नहीं किया, कहाँ पर सुटेबल है, कहाँ पर फिजिबल है, कहाँ पर नॉन, तो सारी इंफॉर्मेशन लेके फिर उसको सबमिट करते हैं पेटेंट ऑफिस को, तब जाके पेटेंट का डॉक्यूमेंट आगे आपका बढ़ता है। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक स्टेप्स। सो 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, जैसे कि आप देखते हैं पहले सब लोग आयरन यूज करते थे, तो नोवेल्टी के लिए हम एक एस्पेक्ट देखते, तो अब नाउ यू आर यूजिंग कार्बन फाइबर एलॉय, तो कार्बन फाइबर एलॉय इज नोवेल मटेरियल, तो ये नोवेल्टी हो गई आपकी। इन्वेंटिव एस्पेक्ट, जैसे कि पहले इंटेंडेंस बल्ब था, अब CFL बल्ब आ गया, अब LED आ गया, तो यहाँ क्या सेम वोल्टेज पे आपको डिफरेंट ब्राइटनेस मिली, तो दिस इज इन्वेंटिव एस्पेक्ट। आपका वोल्टेज सेम है लेकिन आपका ब्राइटनेस डिफरेंट है, तो दिस इज इन्वेंटिव एस्पेक्ट और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। देन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन शुड बी प्रैक्टिकली एप्लीकेबल इन इंडस्ट्री, मतलब उसको आप प्रैक्टिकली एप्लीकेबल कर पाओ, उसको यूज कर पाओ, तो दीज आर 3 एस्पेक्ट्स। सो इट्स अ लीगल टाइटल रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट, इट्स एन एक्सक्लूसिव राइट, अगर आपको एक बार राइट मिल जाता है तो नो वन अदर कैन यूज। देन इट्स अ लिमिटेड टेरिटरी, आप जहां जहां फाइल करेंगे वहां राइट मिलेगा। अगर अपने को लगता है हमारा इनोवेशन इंडिया के अलावा जापान में भी यूज वहां भी अप्लाई कर देंगे, हमको लगता है केनिया भी है तो केनिया में भी अप्लाई कर देंगे, तो डिपेंड कि कहाँ का हमारा मार्केट है, और हमको लगता है इंडिया में मार्केट है केवल, या हमें केवल एक नाम के लिए चाहिए तो केवल इंडिया में अप्लाई कर देंगे। और इट्स लिमिटेड फॉर 20 ईयर्स, केवल 20 साल के बाद इसको कोई भी यूज कर सकता है। पैरासीटामोल का पेटेंट खत्म हो चुका है, एजिथ्रोमाइसिन खत्म हो चुका है, सब लोग एजिथ्रोमाइसिन बना रहे हैं, पैरासीटामोल बना रहे हैं, नो इशू, क्योंकि पेटेंट इज एक्सपायर्ड, तो उनको कोई परमिशन लेने का जरूरत नहीं है। देन प्रॉब्लम सॉल्यूशन अप्रोच, एक अप्रोच प्रॉब्लम सॉल्यूशन है, दिस इज द बाइसाइकिल, this if you park it horizontally then it will require this much of space, the length of the bicycle will be the space required for parking. So what is the feasible solution? This is a vertical. So if you come into problem solution approach, then also patent is also a good case for grant. अब देखिए आप एक थिन मेटल रोड है, उसको मैंने आगे से शार्पन कर दिया, पीछे से टेपर कर दिया, it become a paper pin, आगे से शार्पन कर दिया, जैसे मैंने हल्का सा एक होल टाइप कर दिया कि उसके अंदर थ्रेड जा सके, हैंड नीडल हो गया। तो आगे से मैंने शार्पन भी कर दिया और आगे मैंने होल कर दिया, उसमें थ्रेड लगा के मशीन के थ्रू चलाया तो मशीन नीडल हो गया। देन मैंने उसको आगे से शार्पन करके पीछे एक प्लास्टिक कैप लगा दी तो ड्राइंग बोर्ड हो गया। डिफरेंट इनोवेशंस आर देयर। ऐसा नहीं कि एक मेटल रोड पे आप 200 एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आपने ये बाइंडर क्लिप बना ली इस तरह के, देखिए आप दिख रहे हैं आपको ये बाइंडर क्लिप, पेपर को बिना फाड़े आप ये कर सकते हैं। उसका फिर आपने हार्ट शेप डिजाइन बना लिया, फंक्शन ऑलरेडी नोन, डिजाइन बना लिया, मटेरियल चेंज कर दिया आपने, ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। अब ये आई थिंक इसके पहले हम लोग शायद इसकी पढ़ेंगे क्योंकि टाइम कम है अभी। सर ऐसे डॉक्टर भट्ट सर, डॉक्टर भट्ट जी सर आवाज आ रही है सर। हाँ सर, आई थिंक वी नीड टू रीस्टार्ट, क्योंकि अपने लास्ट सेशन रीस्टार्ट करके कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल, अभी टाइम 1 मिनट का बचा है सर। हाँ, क्योंकि कंसेप्ट भी ओवरलैप हो जाएगा। वी शुड रीस्टार्ट है ना? ओके सर, हाँ जस्ट आप इसको बंद करके नया लिंक भेज दीजिए। हाँ नहीं वो लिंक सेम रहेगा, लिंक सेम रहेगा, ठीक है सर। वो मैं तुरंत कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ ठीक है। प्रीति, मैं ऑडिबल? कोई क्वेश्चन है तो आप पूछो हिंदी में जब तक सर ज्वाइन कर रहे हैं। We can or any language. So it's a very clear differentiation ना कि हर चीज में थोड़ा सा नॉवेल्टी अगर डेवलप कर लो, इधर यू कैन सॉल्व सम प्रॉब्लम, है ना, कुछ आइडिया आ जाए, तो यू कैन अर्न ए लॉट
इतनी पढ़ाई लिखाई का फायदा क्या है जब हमने ये नहीं सीखा अपनी लाइफ में कि हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम. हम यही तो करते आ रहे हैं. वी आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम एंड डेली वी आर सॉल्विंग सम प्रॉब्लम. टेक्निकल टीम बना सकते हैं इसके लिए. अगर कोई जैसे विशेष प्रॉब्लम है, जैसे कोविड-19 हो गया, अगर इसका रियल में इफ एनीवन इज डिस्कवरिंग समथिंग नॉवेल, है ना, तो पूरे वर्ल्ड में सेल होगी. तो थिंक ऑलवेज इन टर्म ऑफ सेलिंग कि प्रॉब्लम जो सॉल्व करेगा उसी की ज्यादा सेलिंग होगी. दैट्स द काइंड ऑफ थिंग. रादर देन स्टीलिंग एनी अदर्स आइडिया, इट्स बेटर टू डेवलप सम नॉवेल आइडिया. प्रॉब्लम विल बी सेम. सर आ गए तो मैं सर को सर वो स्क्रीन सर वो कर दीजिए. दे दिया. डिबिलिटी आ रही है सर? हाँ विजुअल सर, विजुअल. हाँ ठीक है सर. एक बार स्क्रीन पढ़े नहीं क्या आ रहा है? स्क्रीन पे क्या आ रहा है? सही है, सही है. स्क्रीन पे क्या आ रहा है थोड़ा एक बार रीड आउट कर सकते हो? ऑफ इन्वेंशन. ऐसा टेस्ट ऑफ नोवेल्टी एंड नॉन ऑब्वियसनेस ये दिख रहा है? इज इट विजिबल? Yes, sir, it's visible. Yes, sir, it's visible. Okay. Now you can see how we can determine the test of novelty and non-obviousness. Suppose there is an experiment done by Dr. Kumar. NaOH plus HCl is equal to NaCl plus H2. Now after this experiment and some other experiment, Dr. Kumar propagated the principle that acid plus base in normal condition will result in salt and water will be out as an expedient. Now you see, after this, some other scientist, Dr. Singh, done another experiment. NaOH plus HCl equal to KCl plus H2. Okay, see that KCl, potassium chloride, was the reported for the first time. Okay, now it is novel, but it is very obvious and trivial because HCl property is same as that of salt, NaCl. It is already reported that acid plus base in certain condition will give salt and water. So though the KCl may be reported for the first time, it might be novel compound, but it is very obvious because it is result of the very obvious experiment. तो यहाँ पर आपके पास नोवेल्टी तो है लेकिन इन्वेंटिव एस्पेक्ट नहीं है. आप इसका पेटेंट नहीं कर सकते. लेकिन आप दूसरा पहलू देखिए इसका. नीचे जाइए. यूरियस प्लस कार्बोटेमाइड. यूरियस प्लस कार्बोटेमाइड को अपन रिएक्ट करते हैं, जो मॉलिक्यूल बनता है वो ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में काम आता है. दैट इज, लेकिन बट इट हैज सम टॉक्सिक पैरामीटर्स. ओके, नाउ इफ यू रिप्लेस यूरियस बाय सल्फोनिल यूरियस and carbutamide with tolbutamide, okay, with a similar family. So now the molecule is non-toxic. So here we are getting the blood sugar controlling molecule, but with non-toxic capacity. So this is inventive aspect because you are getting a property which you were seeking and which was not available earlier. So those aspects can be argued as a inventive aspect. जैसे आप ये जिलेट मैक्सी का देख सकते हैं, 57 पेटेंट्स है. एक ही रेजर पे 57 पेटेंट्स. इसका जो इंडिकेटर लुब्रिकेटिंग स्ट्रिप है आपका, इसका जो 3 ब्लेड काउंटर ग्रिप है, इसका डीएलसी कोटिंग से, यहाँ पर हर चीज को उन्होंने पेटेंट पे डाल रखा है. देखिए आप लिखा हुआ है यहाँ पर वैक्यूम चैम्बर है, सिंगल पॉइंट कार्ट्रिज है, लोडिंग सिस्टम है, इंडिकेटर स्ट्रिप है, 3 ब्लेड सिस्टम है, पिवोट डिजाइन है, ग्रिप है, मैक्सी टेक्नोलॉजी. तो लॉट ऑफ पेटेंट्स आर देयर. एक सिंगल प्रोडक्ट पे मल्टीपल पेटेंट्स, बिकॉज क्योंकि इनको अपना प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना है कि कंपटीटर को रोक सके. जो बड़ी कंपनीज होती है तो स्ट्रेटेजिकली काम करती हैं पेटेंट के लिए. जो रिसर्चर होते हैं उनको जनरली पेटेंट एक अपनी प्रोफाइल के लिए चाहिए होता है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ अब आप लोग ये एग्जांपल देखिए. इस एग्जांपल को देखने के बाद यू विल फाइंड द इन्वेंटिव एस्पेक्ट. ये चेयर है, चेयर पे हमने मैग्नेटिक बॉल लगा दिया, आपको दिख रहा है. मैग्नेटिक बॉल इसके पीछे की तरफ लगा दी है, और जो भी इस मैग्नेटिक बॉल को यूज कर, जो भी इस चेयर पे बैठेगा तो एक मसाज इफेक्ट मिलेगा, और दैट इज नॉन अल्टरनेटिव मेडिकल थेरेपी. ओके, नाउ अगर इसका इन्वेंशन का पेटेंट करना हो तो अगर आप मेरे पास आओगे, इफ यू कम टू मी और एनी अदर कंसल्टेंट, आपको जो वार्तालाप होगा, आपको जो कन्वर्सेशन होगा किस तरह से जाएगा, मैं थोड़ा समझाता हूं तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा.
सबसे पहले आई विल आस्क व्हाट इज इफेक्टिव, इफेक्टिव क्या चीज है इसमें से, मैग्नेटिक के कारण जो अब मसाज इफेक्ट आ रहा है या उसका प्रोटरबेंस जो वो न्यूक्लियर हिस्सा है उसके कारण आ रहा है, मैं आप या दोनों के कारण आ रहा है। फिर मैं आपसे पूछूंगा कि इसमें कौन कौन से मटेरियल यूज कर सकते हैं, तो आप बोलोगे सर मटेरियल बी और सी और डी कैन बी यूज्ड, तो हम उसको भी लिस्ट कर लेंगे। ओके, इन माय इन्वेंशन आई कैन यूज 4 मटेरियल्स ए बी सी डी। देन मैं आपसे पूछूंगा इसमें क्या प्रोटरबेंस केवल एक ही तरह का होगा या अलग अलग हो सकता है, आप बोलोगे नहीं सर इसमें भी 3-4 प्रोटरबेंस हो सकते हैं, कोई स्पेरिकल हो सकता है, कोई ओवल हो सकता है, कोई स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर विद पॉलिश सरफेस हो सकता है। तो मैं लिखूंगा 4 तरह के शेप्स हैं जो इसमें काम आ सकते हैं। फिर मैं पूछूंगा आपसे व्हाट आर द डिफरेंट एप्लीकेशंस, तो आप बोलोगे सर इसको हम चेयर में भी लगा सकते हैं, हम अपने बेड पे भी इस प्रोटरबेंस को लगा सकते हैं, हम अपने शूज और स्लीपर्स पे भी इसको लगा सकते हैं, वहां पर भी मसाज इफेक्ट ले सकते हैं। तो नाउ पहले आपका एक छोटा सा इन्वेंशन था कि आपने स्पेरिकल प्रोटरबेंस चेयर पे लगाए थे। अब नाउ अब आपका क्या इन्वेंशन है, आपने 4 तरह के 4 शेप्स प्रोटरबेंस, 4 डिफरेंट मटेरियल विद 4 डिफरेंट एप्लीकेशंस। तो आपका इन्वेंशन अब इतना बड़ा हो गया। तो नाउ मींस योर वे ऑफ थिंकिंग हैज चेंज्ड। ओके, अच्छा नाउ सो इस तरह से आप इन्वेंशन अब इस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, इसको ऐसे इन्वेंशन को ब्रॉड कर सकते हैं। नाउ यू सी इन इंडिया अडॉप्ट फर्स्ट टू फाइल सिस्टम, मींस इफ यू आर 2 पर्सन आर वर्किंग ऑन सेम आइडिया सेम ड्रग मॉलिक्यूल, और जो जिसने पहले स्टार्ट काम किया था वो कुछ दिन के लिए छुट्टी के लिए फॉरेन ट्रिप पे चल गया, व्हाट एवर some personal engagements were there, so he was busy. And in the meantime the person who started late but they were unknown, means they were doing independently, they were not known about each other experiment. The second person filed the patent. Then who will get the right? The person who filed the patent first, not the person who invented the molecule first. So this is the first to file system. So आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है, ऐसा नहीं कि इन्वेंशन करने के बाद आप लोग थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, यू शुड फाइल इट इमीडिएटली। ये कुछ इश्यूज हैं जैसे कि नेचुरल प्रिंसिपल, आइंस्टाइन थ्योरी, डार्विन्स प्रिंसिपल, डिस्कवरी, जैसे आपको कोई पेड़ मिल गया, कहीं कुछ मिनरल मिल गया, तो इन तरह को इनको पेटेंट नहीं मानते, डिस्कवरी को पेटेंट नहीं मानते आप लोग, प्रिंसिपल्स साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को पेटेंट नहीं मानते। मेथड ऑफ एडल्ट्रेशन, कोई आप कहोगे साहब मैंने तो मिलावट करी खाने में, इससे खाने मिलावट थोड़ा सा इसमें पॉइजनस इफेक्ट आ जाता है, तो मेथड ऑफ एडल्ट्रेशन या मैंने आई हैव मेड आर्टिफिशियल मावा which is दो टेस्ट लाइक अ मावा बट इट इज हार्मफुल टू हेल्थ, तो इस तरह के पेटेंट अलाउ नहीं होते। ठीक है, मियर एडमिक्सचर, अब आपने 3 चीजों को मिला दी, तीनों की प्रॉपर्टी मिक्स हो गई, आप लोगों ने क्या पानी के अंदर रेड कलर पाउडर लगा के उसमें शुगर डाला और बोला कि आई हैव प्रिपेयर्ड अ स्वीट शरबत, सो इसको पेटेंट कर दो, तो इसमें क्या है पेटेंट का है, तो इट्स अ मियर एडमिक्सचर। तो इस तरह के चीजें, और डॉक्टर्स के ट्रीटमेंट का तरीका वो अलाउ नहीं है, जैसे कि ऑपरेशन कैसे करते हैं, सीजर को कैसे पकड़ते हैं, वो अलाउ। ओके, एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड इन्वेंशन अलाउ नहीं, तो वैसे बहुत सारे पेटेंट अलाउ नहीं है आपके। और जैसे बायोमेट्रोप्रोस्ट है, बायोमेट्रोप्रोस्ट किस लिए काम आता है, एक आई का जो ग्लूकोमा होता है उसको, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है कई बार, उसमें प्रेशर पड़ता है ना, तो उस तरह की प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए बायोमेट्रोप्रोस्ट यूज करते हैं हम लोग, फोकल हाइपरटेंशन के लिए। अब सपोज को सेम कंपोजिशन को आप लोग यूज कर रहे हैं डीपिगमेंटेशन, जैसे कहीं दिखाओ कहीं व्हाइट स्पॉट्स होते हैं बॉडी पे, देयर आर व्हाइट स्पॉट्स ऑन द बॉडी, तो फॉर दैट इफ यू आर यूजिंग बायोमेट्रोप्रोस्ट द सेम कंपोजिशन, then it is not patentable because it's a second medical application. Its compound is already existing. It's a known compound, but you are only disclosing the second medical application without changing the composition. लेकिन अगर आप इसे composition change कर दोगे, बायोमेट्रोप्रोस्ट में कोई और साल्ट डाल दोगे, then it become a new product patent. That is important. जो अरिंदम पूछ रहे थे उसका आंसर है, जैसे पैरासीटामोल है, एंटीपायरेटिक है, ठीक है सर, रिड्यूस फीवर। हाँ, पैरासीटामोल एंटीपायरेटिक है टू रिड्यूस फीवर। अब आप इसको बोलते सर इट इज ऑल्सो फॉर एनाल्जेसिक टू रिलीव पेन, तो पेटेंट इज एलिजिबल? नो। ओके, निमोडिपिन ब्लड प्रेशर, अब you find that it's good for cerebral disorder and it's eligible but no. So in the same way aspirin and pregabalin. अभी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का जो आ रहा है आजकल कि इट इज यूज फॉर कोविड इन्फेक्शन, जो है ना कोविड-19 से जो इन्फेक्शन हो रहा है उसको ट्रीट करने में, उसको रिड्यूस करने में it's a good substrate, but since the already compound is known and you are only giving new medicine, new application. ओके, सो इस तरह से डिफरेंट ट्रेडिशनल पे भी हमारे कुछ पेटेंट्स वगैरह हुए थे, तो लेकिन अभी वो रिवोक हो गए हैं, क्योंकि
ट्रेडिशनल नॉलेज का पेटेंट अलाउ नहीं, क्योंकि दिस नॉलेज ऑलरेडी नोन, लेकिन पहले डॉक्यूमेंटेड नहीं थे तो लोगों को पता ही नहीं था। अमेरिकन क्लेम करते थे, इसका जिक्र ही नहीं है। तो फिर हमने देखा कि हमारे पास अरबी में, संस्कृत में अलग अलग वर्ड में लिखे लेकिन जो वो पढ़ नहीं पाते, तो हमने उसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में अवेलेबल कराया। तो नाउ दे आर अवेयर कि इंडिया में काफी कुछ नॉलेज है और इनको पेटेंट नहीं कर सकते। जैसे हल्दी की प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट, जो आपकी दादी नानी के नुस्खे हैं कि हल्दी को कहीं भी लगा लीजिए, यू कैन अप्लाई एनीवेयर ऑन एनी सेप्टिक, इवन सर्जिकल वाउंड, देन इट विल हेल्प टू हील। बट द डॉक्यूमेंट वाज इन अरेबिक एंड उर्दू दैट प्रिस्क्राइब दैट ओके हल्दी एंड अरेबिक का ये यूज है। तो डेट से, किस डेट को पता था भी, उस अरबिक डॉक्यूमेंट को देख के पता चला कि इतना पुराना है फॉर्मूला। तो फिर वो पेटेंट रिवोक कराने के लिए एप्लीकेशन लगाई, फिर वो रिवोक कर रहा है। तो देखिए इस तरह से मिला था, आप पढ़ भी नहीं सकते, आप हम भी नहीं पढ़ सकते अमेरिकन से उर्दू में। तो इस तरह से नीम ट्री का भी पेटेंट रिवोक किया गया हमने। एंटी फंगिसाइडल प्रॉपर्टीज है उसकी, तो यूरोपियंस ने उसको पेटेंट किया था, उनको चैलेंज करके उसको रिवोक किया है। तो इस तरह से डिफरेंट इश्यूज हैं। क्या टेक्निकल है क्या नॉन टेक्निकल है, वो भी एक इशू है, दैट इज मोर बिग इशू। क्या पेटेंटेबल है क्या नॉन पेटेंटेबल, तो देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज आर देयर। इट्स अ वेरी स्पेसिफिक एरिया। चलो कुछ क्लेम पढ़ेंगे हम लोग। पेटेंट इस तरह का होता है जनरली, आपका टाइटल होता है, फील्ड ऑफ इन्वेंशन होता है, फिर बैकग्राउंड आर्ट, प्रायर आर्ट, क्या क्या सॉल्यूशंस अवेलेबल है उसको डिस्क्राइब करना होता है। फिर ऑब्जेक्ट्स हैं आपके, क्या ऑब्जेक्ट्स हैं, आप क्या बना रहे हो, आप मल्टी फंक्शनल रोबोट बना रहे हो, आप लोग यू आर प्रिपेयरिंग अ मॉलिक्यूल टू पुट द कैंसर, तो आप क्या ऑब्जेक्टिव है आपके, तो उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, कैसे एक्सपेरिमेंट किया है, किस कंडीशन में किया है, उसके रिजल्ट क्या है, डिस्क्रिप्शन एंड ड्राइंग्स। देन क्लेम्स, व्हाट यू क्लेम, आपने आपको मॉलिक्यूल में क्या क्या कितना परसेंट वेरी कर सकता है, वो सब क्लेम करना पड़ता है आपको। एब्स्ट्रैक्ट, ये सब चीजें आप दोगे, आपका पेटेंट फॉर्मेट बन जाएगा। लेकिन इसमें देखो आप बाकी सब चीजें आप लोग ऑलरेडी कर चुके हो, टाइटल, फील्ड ऑफ इन्वेंशन, बैकग्राउंड, ऑब्जेक्ट्स, समरी, डिस्क्रिप्शन, एब्स्ट्रैक्ट। क्लेम्स आपको थोड़ा सा अलग से लिखना पड़ता है, वो थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है। ड्राइंग शीट जमा करते वक्त आपको ये ना होता है, इस तरह से ड्राइंग शीट जाती है, नंबर होते हैं आप उसके, नंबर 1 2 3 4 10 ओके, नंबर्स होते हैं आपके, तो उस नंबर पे आप आइडेंटिफाई करते हो। आप लोग पार्ट का नाम नहीं लिखते, नंबर लिखते हैं। जैसे कि 1 मींस बैंड, 4 मींस स्प्रिंग होल्डर, 5 मींस पिस्टन, मींस description we will describe 5 as a piston, but in drawings we will only write 5. We will not write 5 and piston together, only write 5. So to 5 we can search in the specification. This is the format of drawing. How to claim, if I want to claim a brush, then I will write a cleaning article. If I want to claim a camera, then I will write an image capturing unit. If I want to claim a pencil, then I will write a writing instrument. So what I am doing, मैं उसको जो नाम है उसको एक फंक्शन के ऊपर प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। ब्रश का क्या काम है, क्लीन, तो क्लीनिंग आर्टिकल। कैमरा का क्या काम है, इमेज कैप्चर करना, तो इमेज कैप्चर यूनिट। पेन पेंसिल का क्या है, राइटिंग, तो राइटिंग इंस्ट्रूमेंट। आई एम ट्राइंग टू डिपिक्ट द प्रोडक्ट एज ए फंक्शनल प्रोडक्ट। अब जैसे बॉल बियरिंग है तो ड्यूरेलिटी ऑफ बॉल्स, तो काफी सारी बॉल्स होती है, ड्यूरेलिटी ऑफ बॉल्स। अब ये फ्लॉपी बॉल है, स्पेरिकल ऑब्जेक्ट विद फ्लॉपी फिलामेंट्स टू प्रमोट शोर कैप्चर, तो उसका फ्लॉपी से आपको पकड़ जाएगा ना, फ्लॉपी से आ जाएगी, तो फ्लॉपी इस तरह से हम समझा सकते हैं इसको। अगर आप में से कोई इलेक्ट्रिकल किया तो देखिए आप बैटरी को लिखा सकते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर सोर्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। ट्रांसफार्मर को वी कैन राइट गैल्वेनिकली आइसोलेटेड इलेक्ट्रिकल कपलिंग मींस। ट्रांजिस्टर को वी कैन राइट सेमीकंडक्टर स्विचिंग डिवाइस विद कंट्रोल इलेक्ट्रोड। in this different spring we can write energy storing mean, because spring में एनर्जी होती है, जैसे आप छोड़ोगे तो एकदम से एनर्जी निकलेगी। nails, screw rivets को you can write fastening means, because you fasten it on the surface. It's a part of claim, like introductory phase, body of the claim, link that the two segment, like comprising input surface adapted to be locally exposed to pressure force. Sensor means disposed below the input surface for detecting the position of the patient. ठीक है, एक कीबोर्ड भी हो सकता है, क्योंकि इनपुट डिवाइस है जो सेंस कर रहा है आपने कहाँ प्रेस किया। आप एटीएम मशीन पे जाते हो, प्रेस करते हो A B C D जो भी 1 2 3 4 व्हाटएवर, जैसे 1 प्रेस करते हो तो वहां वो सेंस करता है 1, और 1 जाके फीड हो जाता है, 2 फीड हो जाता है। इसी तरह आप अपने कीबोर्ड पे जो भी टाइप करते हो ABCD या ऑरेंज XYZ, वो सेंस करता है ना वहां पर, उसको तो सेंसर होता नीचे। ये आपके सिंपल कीबोर्ड को इस तरह समझा हुआ है। डेटा इनपुट डिवाइस कंप्राइजिंग एन इनपुट सरफेस adapted to be locally exposed to pressure or pressure force
टेंशन मींस डिस्पोज बिलो द इनपुट सरफेस डिटेक्टिंग द पोजीशन ऑफ द प्रेशर। इस तरह से हमने इसको समझा दिया। ये कुछ भी हो सकता है, देखो ये सब चीजें हो सकती है ना। माउस भी तो क्या करता है, आप क्लिक करते तो सेंस करता है कि हाँ यार यहाँ पर क्लिक तो वो कर्सर को वहां ले जाता है। वो स्टिक है आपका, पेन है, वेब कैमरा है, बारकोड रीडर है, आपका जो टच स्क्रीन है, फिंगरप्रिंट रीडर है, टच पैड है, ये सब सेंस कर रहे हैं इनपुट डिवाइसेस। इस तरह से आपका शूज हो सकता है कि एथलेटिक शू कंप्राइजिंग लेफ्ट पोर्शन, राइट पोर्शन, सोल पोर्शन integrally connected to the left portion to right portion and a means for detachably fastening the said left portion to the side right portion। देखिए आप लेफ्ट पोर्शन राइट पोर्शन डिटेचेबल मीन्स है, अपने जो अपने लेसेस जिसको अपन हिंदी में फीते वगैरह बोलते हैं, फीते या हुक वगैरह, वो डिटेचेबल मीडियम सोल पोर्शन। इस शूज को इस तरह समझा दिया, उसको स्ट्रक्चर को इस तरह समझाया कि एक शूज बन के निकला है। जब भी आप पेटेंट में बात करते हैं यू हैव टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट। कार्बोनेटिंग बेवरेज का भी पेटेंट हो सकता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को एजिटेट करते हैं, तो उसको समझा रखा है। आपका कॉपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग का भी एक हो सकता है कि उसमें कॉपर सल्फेट कितना है, कंसंट्रेशन क्या है, उसका सल्फ्यूरिक एसिड का कितना वॉल्यूम है, क्या वो सब कि पीएच वैल्यू कितनी मेंटेन है, तो वो सब यू कैन शो। देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लेम, जैसे कि एक क्लेम है आपका इलास्टिन का है, इसका अपना जो नसल स्प्रे होता है, जो आपका सीजनल जो इन्फेक्शन हो जाता है, राइनाइटिस जो आपका सीजनल इन्फेक्शन हो जाता है, उसके लिए एक पेटेंट अप्लाई किया था। क्या देखो आप इलास्टिन है, आपका स्टेरॉइड है, इसमें मसल और ओकुलर एडमिनिस्ट्रेशन से कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। एरोसोल्स में भी यूज कर सकते हैं, जैसे एरोसोल और आई ड्रॉप, ठीक है ना। इसमें स्टेरॉइड क्या हो सकता है आपका डेक्लोमेंथोसन और ईस्टरडियोरोफ, या फिर मोमेटासोन और ईस्टरडियोरोफ, फिर फ्लूटिकासोन और ईस्टरडियोरोफ। इस तरह के इन्होंने अलग अलग चीजें बताई कि ये यूज कर सकते हैं हम लोग। बट एक्चुअल प्रोडक्ट क्या है आपका, एक्चुअल प्रोडक्ट इन्होंने क्या यूज किया है, फ्लूटिकासोन, है ना, ओके। ये यूज किया है, क्या यूज किया है, एजालिस्टिन यूज किया है और हाइड्रोक्लोराइड यूज किया है। आप कंपोजिशन उसका देख सकते हैं पूरा है। बेंजालोकियम भी यूज किया है और फ्लोराइड भी यूज किया है और तो काफी कुछ यूज किया इन्होंने। तो ये सब पेटेंट इनका ये वाला था इसका, और इन्होंने तीनों फॉर्म में यूज किया है, ओके। आप इसको इंसफ्लेशन में भी यूज कर सकते हैं, तब आप इस तरह से प्रेशर से दे सकते हैं, हाइड्रोप भी यूज कर सकते हैं या फिर नसल स्प्रे कर सकते हैं। तो वो भी आपने क्लेम किया कि इसको कैसे कैसे एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा कंपनी होता है, सारा एस्पेक्ट्स को कवर करके चलता है, तब जाके उसका पेटेंट मार्केट में एक अपना राइट होल्ड कर सकता है और उसको सेल आउट कर सकता है और इन्फ्रिंजमेंट को रोक सकता है। So now I think, sir, we can conclude and we can have question answer session with the session with the participants. Yes, sir. No problem. Arindam, Sangeeta, Preeti. Yes, sir. Anyone want to ask any question? प्रीति के बहुत सारे सवाल है, मुझे पता है, पूछेगी। अरिंदम भी पूछो। हाँ जी। सर मेरा सर ये क्वेश्चन था कि सपोज अगर एक कंपनी है जैसे सिप्ला और इंटास फार्मा, दो कंपनी, यस सर, सर सपोज सर दो कंपनी है, एक है इंटास और एक सिप्ला फार्मा, उन दोनों ने सर मतलब एक ड्रग बनाया जो अल्सर को ट्रीट करता है। अब सर सपोज वो उस ड्रग को सर हम मतलब अगर मतलब इंट्रा ओरल ले रहे और दोनों ड्रग के कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतलब मेजोरिटी में 90% सेम है, बट 10% बिल्कुल थोड़े बहुत सर अगर चेंज होते हैं, और अगर इसके बाद कोई थर्ड कंपनी आती है जिनका दोनों कंपनी का मतलब 90% 95% तक उनका ड्रग कॉन्स्टिट्यूएंट सही है, इंग्रेडिएंट सही है, बट 5% थोड़ा वेरी करता है, तो क्या सर वो पेटेंट बना सकता है? और अगर विदाउट वो टॉक्सिक मतलब वो कुछ मतलब ऐसे साइड इफेक्ट नहीं दे रहा, बट वो ट्रीट कर रहा है बिल्कुल मतलब एफिशिएंटली ट्रीट कर रहा है अल्सर को, तो वो थर्ड पार्टी का पेटेंट करा सकता है? अगर वो 10% कंपोजिशन में चेंज हुआ है, ओके, और वो सिग्निफिकेंट चेंज आ रहा है, अगर वो सिग्निफिकेंट चेंज आ रहा है, उसकी जैसे सपोज करो पहले आपने केवल 2 ड्रॉप की जगह 1 ही ड्रॉप डालनी पड़ी, उसकी इफेक्टिविटी बढ़ गई है, तब तो देन दे कैन गो फॉर पेटेंट। और अगर एक सिंपल एक जस्ट एक कॉस्मेटिक चेंज है जस्ट टू प्रूव दैट ओके वी आर यूजिंग डिफरेंट कंपोजिशन, तो देन इट विल बी अ केस ऑफ पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट। क्योंकि अगर आप पेटेंट में थोड़ा सा चेंज करोगे, उसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ इक्वलेंसी, तो अगर आप इक्वलेंट में थोड़ा सा इक्वलेंट करके चेंज कर दोगे तो आपका पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट माना जाएगा उसमें। तो ये तो
ये तो फिर अदरवाइज फिर तो सारे फार्मास्यूटिकल कोई भी कंपनी पेटेंट नहीं मानेगी, थोड़ा सा चेंज कर देंगे। आप जैसे कि आप लोग शक्कर लेते हैं आप लोग, तो अगर डायबिटिक पेशेंट को कहते हैं अगर आधी चम्मच से ज्यादा शक्कर नहीं लेनी तो वो 1/4 भी तो ले सकता है ना, 1/4 पे भी उसको नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा। तो वो तो फिर आप थोड़ा सा जो चेंज कर रहे हो, अगर वो सब्सटेंशियल नहीं है तो वो नहीं माना जाएगा, देन दैट विल बी इन्फ्रिंजमेंट रादर, वो परमिशन छोड़ो, आपको इन्फ्रिंजमेंट हो सकता है। ठीक है सर, आई गॉट इट, थैंक यू सर। नीतिका रामचंद्रन ने बोला है साहब, नीतिका रामचंद्रन का सर मैसेज आया है, अपॉर्चुनिटी फॉर लाइफ चेंज इन आईपीआर सेक्टर, आई मीन जॉब अपॉर्चुनिटी, है ना। तो नीतिका नीरतिका रामचंद्रन, ओके। तो बेसिकली अपॉर्चुनिटीज तो सर काफी सारी हैं अभी तो काफी कुछ काम, क्योंकि फॉरेन कंपनीज भी इंडिया में अप्लाई कर रही है और इंडियन कंपनीज भी फॉरेन में पेटेंट अप्लाई कर रही है। तो देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी, लेकिन आपको थोड़ा सा इसमें वर्कआउट करना पड़ेगा, इसके पेटेंट के लॉज समझने पड़ेंगे, इसके प्रिंसिपल समझने पड़ेंगे, आपको थोड़ा टीम में काम करना पड़ेगा, आपको वर्किंग फ्लेक्सिबिलिटी आवर्स में काम करना पड़ेगा, है ना। आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपना कॉन्टेक्ट रखना है ताकि लोगों को पता चले आप क्या सर्विस दे रहे हो, अदरवाइज लोग आपको नॉलेज है लेकिन आप लोगों को आपके बारे में पता नहीं है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। तो लेकिन ये है कि इसमें काफी सिंसियरिटी चाहिए, काफी टीम वर्क चाहिए, और आपका क्लाइंट फॉरेन क्लाइंट है तो आपको फ्लेक्सिबल आवर्स में काम करना पड़ेगा, उनका जब सुबह हो रहा है आपका रात हो रहा है, तो क्योंकि पेटेंट इंटरनेशनली फाइल्ड होते हैं कई बार। तो ये सब चीजें हैं, और आपको थोड़ा सा टेक्निकली साउंड होना पड़ेगा कि इसके क्या मायने हैं, ईस्टर फॉर्म क्या होती है, एनेंशियोमर्स क्या होते हैं, इसकी चिरल फॉर्म क्या है, इसके क्या इक्विवेलेंट है। तो आपको यू शुड बी थोरो विद दिस थिंग्स। तो सब्जेक्ट आपकी कंपिटेंसी होनी चाहिए, तो इट्स अ गुड चांस आप पेटेंट अटॉर्नी का एग्जाम भी क्वालिफाई कर सकते हैं। और अगर आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं करते तो पेटेंट फॉर्म में आप जॉब भी कर सकते हैं एज ए रिसर्च कंसल्टेंट ऑन द बेसिस ऑफ योर नॉलेज, क्योंकि आजकल बायोटेक में काफी इनोवेशन हो रहे हैं, तो वो भी लाइफ साइंस के लोगों के लिए काफी अच्छा स्कोप है इसमें। हाँ, बहुत अच्छा सर, बहुत बढ़िया समझाया आपने। एक्चुअली में मनीष का भी आ रहा था, मनीष मंदोत्रा। हाँ, व्हाट इज द टाइम ऑफ कॉपीराइट? पीरियड ऑफ कॉपीराइट बेसिकली आपको मिलता है अगर आप लिटरेरी वर्क है तो लाइफ ऑफ ऑथर प्लस 60 ईयर। सपोज कीजिए आपने एक आज कॉपीराइट करा, आपने कोई आपने बुक लिखी, आपने कॉपीराइट करी आपके नाम पे, देन आफ्टर द डेथ ऑफ दैट पर्सन 60 इयर्स इज नेक्स्ट जनरेशन विल एंजॉय। तो उनकी अगर वो बुक अच्छी है और उसकी चल गई तो उसकी रॉयल्टी को नेक्स्ट जनरेशन को भी मिलेगा पैसा, उसकी डेथ के 7 साल के बाद भी। तो इट्स अ वेरी बिग टाइम। आपकी लाइफ से तो रहेगा सही, लेकिन अपने बाद भी ये राइट रहता है। बिल्कुल। नवीन गुप्ता एंड एनी अदर? अच्छा, एक मिनट। और इट टेक्स अराउंड 45 डेज टू रजिस्टर कॉपीराइट। आई थिंक इनका दूसरा शायद इंक्वायरी 45 डेज के आसपास टाइम लगता है रजिस्ट्रेशन आने में, सर्टिफिकेट आने में आफ्टर एप्लीकेशन। कॉपीराइट अप्लाई कैसे करते हैं सर? ये बच्चे जैसे मान लीजिए बुक लिखते हैं कॉपीराइट को, कॉपीराइट को सर अभी तो आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई होता है। उसका पोर्टल है, आपका पोर्टल है, आप उस पर जाके अपना लॉगिन आईडी बना सकते हैं। फिर लॉगिन आईडी बनाने के बाद उसमें एक एप्लीकेशन फॉर्म आता है जिसमें आपको अपनी नेशनलिटी, अपनी एड्रेस, अपना डिटेल्स, टाइटल ऑफ वर्क, उसका किस लैंग्वेज में पब्लिश हुआ, तो काफी कुछ डिटेल आपको काफी सिंपल होता है, वो भर के आपको सबमिट करना होता है। उसके बाद आप लोग वर्क भी यहीं पर अपलोड कर सकते हो, कुछ भेजने की जरूरत नहीं, आप यहीं पर अपलोड कर देंगे, ऑप्शन आता है तो पीडीएफ फाइल बनाके वर्क अपलोड कर देंगे। उसके बाद वो चेक करेंगे, अगर उनको कुछ इश्यू लगता है तो आपको इन्फॉर्म करेंगे, और अगर उनको लगता है कोई इश्यू नहीं है तो डायरेक्टली कॉपीराइट रजिस्टर। यस यस। Sapna, I think you have some question. Gurpreet? Preeti चली गई? Preeti, ask question. No, sir. I have no issue. No, because sir, I don't have question. क्यों? तुम लोग तो इतना क्वेश्चन मेरे से पूछते हो, सर से क्यों नहीं पूछ रहे हो? एक्चुअली मेरे के साथ 3-4 क्वेश्चन है। समझ में आ गया है ना? हाँ, समझ में आ गया सारा कुछ। अच्छा, हाँ फिर तो ठीक है। ये क्वेश्चन है मेरा कि जो लॉज यहाँ पर हैं कॉपीराइट के, वही लॉज जो इंटरनेशनल लॉज भी वही है, सेम है, ये डिफरेंट है? अच्छा नहीं, ये अच्छा इंक्वायरी है। इवन इनफैक्ट कॉपीराइट के अपन सारे आईपी हर कंट्री को फ्रीडम है। वी आर ऑल मेंबर ऑफ WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो WTO गवर्न करता है सबके लॉज, लेकिन उसमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दे रखी है। जैसे कि इंडिया में देखिए आप,
लाइफ साइंस से रिलेटेड पेटेंट को हम लोग थोड़ा सा कहते हैं कि पार्ट, एनिमल पार्ट और बॉडी को हम लोग पेटेंट नहीं कर सकते, ठीक है। एग्रीकल्चर मेथड को हम पेटेंट नहीं करते, हम लोग सॉफ्टवेयर को पेटेंट डायरेक्टली नहीं देते, लेकिन न्यूजीलैंड में हो सकता है, डिफरेंट लॉ हो सकते हैं थोड़े बहुत। तो 75% लॉ इज कॉमन इन ऑल कंट्रीज, 10 to 25% वेरी। कई जगह अपने यहाँ कॉपीराइट, जैसे कि एकेडमिक पर्पज के लिए कॉपीराइट फ्री है, तो हो सकता है कुछ कंट्रीज में एकेडमिक पर्पज से कॉपीराइट फ्री ना हो। हमारे यहाँ आप लोग फोटोकॉपी करा सकते हो बुक को पढ़ने के लिए, हो सकता है ऑस्ट्रेलिया में अलाउ ना करें। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है कि हर कंट्री का लॉ की कुछ, क्योंकि सोवरेंटी तभी तो है, तभी हम लोग कहते हैं कि अगर आपने इंडिया में राइट किया तो इंडिया में मिलेगा, आपको जापान में नहीं मिलेगा। तो एक सोवरियन राइट है जो कंट्री वाइज मिलता है, ओके। तो उसका चैनल भी होता है, आप एक कॉमन एप्लीकेशन के थ्रू भी डिफरेंट कंट्रीज में जा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको प्रोडक्ट इतना फिजिबल होना चाहिए कि आप डिफरेंट कंट्रीज में अप्लाई करो। जैसे जिलेट या सिप्ला या फिर बड़ी कंपनी जैसे, इनके पास, इनको पता है वहां जाके पैसा कमा लेंगे तो खर्चा कर देते हैं, ठीक है। एक ये मनीष ने एक और इंक्वायरी डाला है, आफ्टर पेटेंट एक्सपायरेशन व्हाट इज द यूजेस टू सोसाइटी। अब जैसे पेटेंट एक्सपायर हो चुका, आपका पैरासीटामोल का पेटेंट एक्सपायर हो गया, एजिथ्रोमाइसिन का एक्सपायर हो गया, तो सब कंपनी बनानी चाहते हो पैरासीटामोल कितना सस्ता मोलिक्यूल है, 10 या 15 रुपए में आपको एक पैरासीटामोल का पत्ता मिल जाएगा, 10 मेडिसिन का, 10 या 15 रुपए का। तो जब पेटेंट सस्ता हो गया तो हर कंपनी बना सकती है, कोई रॉयल्टी का इशू नहीं है, तो वो बेनिफिट है, तो सोसाइटी तो बेनिफिट है ना। बिल्कुल, एक्सक्लूसिव राइट खत्म हो गया। सो वेलकम, वोट ऑफ थैंक्स मैं दे देता हूँ सर। थैंक यू सो मच फॉर वेरी नाइस इंफॉर्मेशन, वेरी इन डेप्थ डिस्कशन, बहुत ही अच्छा डिस्कशन रहा। एंड सिंस पार्टिसिपेशन was done mostly by the master student who were currently studying this course in their curriculum. Okay. तो उनको बहुत सारे कंफ्यूजन थी एक्चुअल में, देयर इज अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, क्वेरीज जो उनके टीचर सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, स्पेशली गुरप्रीत के यहाँ तो चल ही रहा है, और भी बहुत सारे बच्चे, मनीष का भी चल रहा है। तो इनको ये था कि मैंने सर आपको बताया भी था कि एक मैंने बुक लिखी है IPR एंड कॉपीराइट पे, जिसको कि मैंने कंप्लीट कर लिया है। खाली उसमें ये था कि एक मैं ऐसे फ्रेंड को चाहता था इन्वॉल्व करना जो जिसको की एक्सपर्टाइज हो इस पे, टेक्निकल। अच्छा, क्योंकि एक रिसर्च पेपर लिखना, रिव्यू आर्टिकल लिखना, दैट इज सिमिलर, बट बुक एग्जामिनेशन एक न्यू करंट थॉट में। तो आपको सर मैं इनवाइट कर रहा हूँ कि आप हमारे को ऑथर बनिए। और गुरप्रीत चूंकि पढ़ रही है उसको लगा कि बहुत ज्यादा इसको जरूरत है, क्योंकि ना कोई बुक है इस पे प्रॉपरली, ना तो कोई अपडेटेड मटेरियल है, बहुत ही दिक्कत हो रही है। तो इसीलिए आइडिया गुरप्रीत का ही था कि सर आपके फ्रेंड अगर कोई हैं तो उनको इनवाइट करिए, एक हम लोग वेबिनार करते हैं, सुनते हैं, सो दैट क्लैरिफिकेशन हो। क्योंकि बिल्कुल ये ऐसी चीजें हैं जिसपे कि बहुत ही कम इंस्टीट्यूशन बहुत अच्छे से कोर्स चला रही है, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है। इवन पेटेंट अटॉर्नी का एग्जामिनेशन जो 5 years में वंस होता है, उसके बारे में भी बच्चों को कुछ भी पता नहीं है, जबकि बहुत अच्छा करियर उसमें बन सकता है। इवन मेरे 2 पेटेंट हैं, एक आपके पास, एक और पेंडिंग है हमारे टीचर का। अच्छा जी। तो ये बच्चे भी चाहते हैं कि फ्यूचर में हम कुछ सीखें और कुछ करें, आगे बढ़ें, बिकॉज पढ़ने का कुछ फायदा मिलना चाहिए। तो उस टर्म में सर आपने बहुत अच्छी क्लियरिटी दिया, बहुत ही अच्छा बताया, इवन इतना माइन्यूट डिटेल में बताया कि ये दूसरे को भी गाइड कर सकते हैं। और इसीलिए मैंने इनको सजेस्ट किया था कि बुक में तो सर हम और सर ऑथर होंगे, और प्लस एक कोर्स भी, जैसे बुक का कंटेंट हमने डेवलप किया है, तो एक वीडियो लेक्चर के फॉर्म में भी एक सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट इन बच्चों के लिए, ताकि एक जो जैसे WTO का समझौता है, गैट का एग्रीमेंट है, IPO है, कब से स्टार्ट हुआ, मतलब बेसिक अगर इनको अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी तो दैट विल बी हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड द एडवांस। बिकॉज जैसे आपने बताया कि सेल को नहीं करा सकते, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको पेटेंट नहीं करा सकते, तो इनको थोड़ी समझ में हो जाए, समझ अगर डेवलप हो जाएगी, तो जैसे आपने कहा पेटेंट फॉर्म में हम जॉब कर सकते हैं कहीं पे भी, तो एज ए रिसर्च कंसल्टेंट रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन बच्चों को पता ही नहीं होता है कि हमें एग्जैक्टली क्या एडवाइस करना चाहिए। तो इफ दे आर वेल अवेयर ऑफ दीज फैक्ट्स, तो इनका फ्यूचर बड़ा ब्राइट हो जाता है। सारे अभी अंधी दौड़ में दौड़ रहे हैं, सारे CSIR के पीछे दौड़ रहे हैं। CSIR का हालत ये है कि 6 लाख बच्चे अपीयर हो रहे हैं एवरी 6 months, देयर इज एड ऑन ऑफ 2 lakhs। हाँ, 6 लाख में सिर्फ 1200 बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं JRF। तो अब क्या है कि बाकी बच्चे बहुत ही दूसरे उसमें चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं कि भाई फ्यूचर हमारा खत्म हो गया, अब क्या करें।
तो वो लगे रहते हैं उसमें। तो हमने इनको बताया नहीं, बहुत सारे डाइवर्जन है और आप वो छोड़ो मत, क्योंकि रिसर्च का बहुत मेजर पॉइंट है, स्कॉलरशिप मिलती है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, बट यू शुड लर्न अदर थिंग्स सो दैट आपकी जो एक्सपेंसेस हैं दैट यू कैन यूटिलाइज, यू कैन मैनेज योर नॉलेज और उसको कन्वर्ट कर सको। थैंक यू लॉट सर फॉर डिलीवरिंग सच ए नाइस लेक्चर। बहुत ही बढ़िया था आपका, बहुत ही जबरदस्त था। मुझे उम्मीद भी थी कि मेरे से ज्यादा और बहुत ज्यादा अच्छा आप बताएंगे और बच्चे खुद ही बताएंगे। गुरप्रीत, गिव योर फीडबैक। ऑल द स्टूडेंट्स, अरिंदम, Thank you, sir. नवीन गुप्ता एंड whatever sir. the students Sir, it was so good, sir, the webinar that actually नया टॉपिक सर सीखने को मिला सर, एक्चुअली काफी ज्यादा इवन आज सर इसका नॉलेज सर आई थिंक सर ज्यादा इन मेजोरिटी सर होगा भी नहीं किसी को नॉलेज सर आज इसके ऊपर। तो आज काफी सर क्लियर कंसेप्ट गाइड था इसके ऊपर आज। तो वी आर सर वेरी सर, बहुत ही सर अच्छा लगा सर आज के ये वेबिनार देख के। हाँ, Right, sir. It was very useful for us. सर मुझे Miss Shelby is writing that it was in Hindi. सारी मेरी सॉल्व हो गई इसमें। As I was studying this तो आप subject, सबको- मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम थी। सर के साथ आप हेल्प करो उनको, सर को बुक लिखने में सर के साथ आप कोथ आप बनो, कि हम तो बिजी रहते हैं। यू कैन कंट्रीब्यूट टाइम देयर। कोई भी इंफॉर्मेशन आप हमसे सलाह ले सकते हो कि सर इसमें क्या गलत है, ठीक है, तो हम थोड़ा हमारी कैपेसिटी, हम और भी लोगों से लिंक कराएंगे सर। इसमें जी जो सर, जी सर। इसमें पीरियड में बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं सीनियर प्रोफेसर। जी जी, तो आप लोग भले छोटी सी बुक लिखो 5-20-25 पेजेस की, लेकिन एक बच्चों को जिस्ट मिल जाए उसमें। हाँ बिल्कुल वैसे ही लिखें सर। बुक ऑलमोस्ट कंप्लीट है, बस एक जब फाइनल थोड़ा सा करके हम आपको भेजेंगे कि पेटेंट वगैरह के बारे में जो नॉलेज है वो कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने कुछ और लिख दिया है और उसकी बच्चों को मतलब फाइनली जो रिव्यू कर लेंगे। हाँ। एक रिव्यू थोड़ा कर दीजिएगा। मैं 1 by 1 भेजूंगा आपको सारी बुक, ऐसे वर्कलोड के रूप में नहीं भेजूंगा। आई विल सेंड यू बिकॉज आई नो कि इट्स अ वेरी स्मॉल टाइम। इसमें नहीं, मैं आपको जैसे कि कुछ लोगों को रेफर भी कर सकता हूँ जो मतलब इसमें और ज्यादा हमसे ज्यादा जी उनका एक्सपीरियंस है, तो वो आपको और शायद हो सकता है कुछ सजेशन अपने को एडिशनल मिल जाए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। हम टीम बना के उसको पब्लिश थैंक यू सर। करेंगे फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी और फॉर द स्टूडेंट्स हेल्प, है ना। थैंक यू सो मच ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर।